Hello dear friends, welcome to our channel The English Garden. Today's video content is for 12th standard Maharashtra State Board English novel number 3rd. Today we are going for important questions and answer belong to novel number 3rd. But let me clear in the beginning, if you understand the summary or content of that novel, then only you'll understand this video. That's why you have to watch this summary. I have made a wonderful video on this summary of this novel. आपको देखना पड़ेगा. अगर आपने वो वीडियो देखा है समरी का, then only you'll understand this question answer. So I request you, please watch that video of that summary of Around the World in 80 Days. Same channel पे है English Garden, and after that you will understand this properly. But even though at the last moment this video is very helpful for you to understand or to acquaint question answer. So once again I repeat, this video is for 12th standard English novel number 3rd Around the World in 80 Days and important question and answer. Ready? Yes. So first question comes like that. I hope the screen is clear for you. Is it clear? So nice. So quitters never win, and explain the line from the light of the extract of the novel. Yes, quitters never win and winners never quit. I will move this side. Now you'll understand. Explain the line from the light of the extract novel. Quitters never win and winners never quit. काम छोड़ने वाले, काम बीच में छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले काम छोड़ते नहीं. So such question come. So you have to explain. This line perfectly suits Phileas Fogg. Yes, he is the best example of determination and stubbornness. Firstly, he accepted a challenge which seems to be highly incredible, unbelievable, impossible. No one can imagine to move around the world in 80 days. Yes, आपको तो मालूम है 80 days में दुनिया घूमना possible नहीं, but he accepted. Yes, when he is arrested, he doesn't lose hope. आपको मालूम है उसको अरेस्ट किया गया था. किसने अरेस्ट किया था? फिक्स द डिटेक्टिव. ओके. आफ्टर गेटिंग रिलीज ही ट्राइज एवरी एफर्ट टू रीच लंडन बाय अरेंजिंग स्पेशल ट्रेन. आपको तो मालूम है जेल से छूटने के बाद उन्हें ट्रेन पकड़ी थी. यस, कोशिश नहीं छोड़ी थी. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. एक्सप्लेन करो. हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. When Pacer part out, after getting released, he tries every effort to reach London by arranging special train. When Pacer part out tells him that today is Saturday, he rushes headlong to the Reform Club. आपको मालूम है वो भागते हुए आया था रेवरेंड से कि आज सैटरडे है. उसने मेहनत मीन्स कोशिश नहीं छोड़ी, भागते गया. कहाँ पे? रिफॉर्म क्लब पे, अगर आपको याद है तो. Every time he has positive approach of winning and tries all his best to achieve success, and lastly he comes out as a winner. You have to explain like that. Question क्या था? Quitters never win and winners never quit. बीच में काम छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी काम छोड़ते नहीं. एंड फिलियस फॉग द बेस्ट एग्जांपल. गॉट इट? ये होगा आपका पहला क्वेश्चन. नेक्स्ट, टाइम इज द ओनली सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम. एक्सप्लेन फ्रॉम नॉवेल पॉइंट ऑफ व्यू. आपको तो मालूम पूरा नॉवेल टाइम पे डिपेंड है एंड टाइम इज द ओनली सॉल्यूशन. आई होप स्क्रीन इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. हाँ, क्लियर. यस, दैट्स फाइन. अब देखो, टाइम इज द ओनली सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम. Here time plays a great role and throughout the novel it rules. Time is a great role. Firstly, Fogg accepts the challenge against time. When he reaches Liverpool within time, he is arrested. Again time. 11:30 11:40 पहुंच गया था, अरेस्ट किया गया. Okay. When he gets released, he loses the train by just half an hour. ट्रेन गई थी आधा घंटा, आधा घंटे पहले चली गई थी. टाइम की बात है. He loses the bed by 5 minutes. Again time. He remains at home respecting the condition. Again he is informed that it is Saturday. He wins the bet just by some second. आपको मालूम है पूरे नॉवल में time plays a very crucial, influential role. Yes. In this way we observe the role of time every time, and sometimes it cheats, sometimes it pleases. कभी कभी उसको time cheat करता था, कभी खुश करता था. In this way we have to admit that time plays hide and seek with us, and we have to give time to get गुड टाइम. पूरे नॉवेल का तो मालूम है मेन है नॉवेल मूव्स अराउंड टाइम. तो आपको ऐसा लिखने का है. 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं 2+2, तो आपको कम से कम 8 से 10 लाइन लिखना पड़ेगा प्रॉपरली. करेक्ट? ये होगा टाइम के बारे में. बाद में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. सेंट्रल आइडिया में समरी लिखो आप, थीम उसका क्या है. यस, अब देखो, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द नॉवेल मूव्स अराउंड हाइड एंड सीक ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम. आपको तो मालूम है. यस, इट शोज हाउ फॉग विंस द इनक्रेडिबल बेट ऑफ मूविंग अराउंड द वर्ल्ड डेज. और ये दिखाता है कि 80 दिन में वो कैसे दुनिया घूम के आता है. ही हैज टू फेस मेनी ऑब्स्टेकल व्हाइल चैलेंज द रेस बट लास्टली सक्सीड इन हिज मिशन. यस, उसका थीम क्या है. यस, उसका सब्जेक्ट कंटेंट क्या है.
This novel emphasizes the power of time, its role. It also depicts me shows a great message that love and affection is more important than money and any other gains of life. आपको सिर्फ उसकी थीम लिखने का है, सेंट्रल आइडिया लिखने का है, सब्जेक्ट कंटेंट लिखने का है, पूरी स्टोरी लिखते मत बैठो. टाइम, हाउ ही मूव्स अराउंड द वर्ल्ड, हाउ ही फेसेस द प्रॉब्लम, ये पूरी समरी है एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस थीम. करेक्ट, सेंट्रल आइडिया. अब थीम एंड सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा रिजेंबलेंस है. आप उसका थीम क्या है, उसका शॉर्ट समरी क्या है, आप देखो. द ग्रेटेस्ट रोल इज प्लेड बाय टाइम एंड इट इज द ग्रेटेस्ट थीम ऑफ द नॉवल. Phileas Fogg accepts the incredible wager or bet, tries all his best to win the bet, but time cheats him every time. Sometimes shows pleasure and sometimes pain. He arrives in time at Liverpool but cannot continue journey. आप उसकी short summary लिखो. Theme is short summary. Again he gets released, tries to catch the train but he missed by minutes. आपको तो मालूम है वो पहुंच गया था जेल के छूटने के बाद, लेकिन ट्रेन चली गई थी and he arranged special train. याद है? Yes. Catching a special train, he reaches London but lost the race by 5 minutes, inviting failure for him. बराबर 5 मिनट के कारण 8:45 को पहुंचना था और पहुंच गया 8:50 को. Again he came to know that it is Saturday. He rushes to Reform Club. एक्चुअली जिस दिन पहुंचा था वो सैटरडे नहीं था, जिस दिन पहुंचा था वो कौन सा डे था, फ्राइडे, लिवरपूल वाला. लेकिन वो क्या समझ में बैठता है, सैटरडे. इसलिए आपको समरी जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन की आपको सुनना पड़ेगा, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस इन आवर लैंग्वेज धिंगाना. यस. नेक्स्ट. Again he came to know that it is Saturday. He rushes to the Reform Club and wins the bet just for few seconds. ऐसा उसका कंटेंट है. इंटरेस्टिंग. सो एक हो गया आपका क्वेश्चन. थीम इज समरी. ओके. यस. बाद में एक्सप्लेन द थ्रिलिंग क्लाइमेक्स ऑफ द नॉवेल. आपको तो मालूम है ये क्वेश्चन मोस्टली आता है. क्लाइमेक्स तो आपको मालूम है लास्ट के 10 मिनट में क्या होगा था. क्लाइमेक्स. व्हेन पेसर पार्ट आउट वाज सेंट टू कॉल द प्रीस्ट ऑफ द वेडिंग. जब वेडिंग के लिए, शादी के लिए पेसर पार्ट को भेजा गया किसके पास, रेवरेंड के पास, अपने लैंग्वेज में प्रीस्ट के पास. ही केम विद द शॉकिंग न्यूज दैट इट वाज सैटरडे whereas they consider it was Sunday. आपको तो मालूम है ये पूरा धिंगाना इन लैंग्वेज. वंस आई कैन रिपीट द वर्ड. पहुंचे थे फ्राइडे को लेकिन समझ में वो समझ रहे थे सैटरडे, एक्चुअली वो सैटरडे नहीं था, फ्राइडे था, इसीलिए समरी देखना पड़ेगा. यस. दे गेन वन डे व्हाइल ट्रैवलिंग टुवर्ड ईस्ट. ईस्ट की तरफ ट्रैवल करते हो तो उनको एक दिन मिला था. Actually, they reached the destination prior to time, but unknown to it, they lament over loss. Actually, एक दिन पहले पहुंच गए थे, लेकिन उनको ये बात मालूम नहीं थी. जिसको वो समझ रहे थे सैटरडे, वो सैटरडे नहीं था, वो फ्राइडे था. और जिसको समझ रहे थे वो संडे नहीं था, वो क्या था, सैटरडे था. समरी देखना पड़ेगा. When Pesar Patout came with the reality announcing that they can win the bet, they rushed to the Reform Club and succeeded in fulfilling their goal. In this way, time gave fruit of Fogg efforts and determination. ऐसा उसका कंटेंट है. करेक्ट. लेकिन कंडीशन अप्लाई. समरी जरूर देखो, देन ओनली विल अंडरस्टैंड ऑल दिस वन, बिकॉज आई कांट एक्सप्लेन वन मिनट हाउ इट हैपन. ओके. समरी जरूर देखो. अब कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट. फिलियस फॉग का कैरेक्टर कैसा है आपको मालूम होना चाहिए. ही इज अ मैन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन. ही इज अ मैन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन. He is a determined person and believes in doing incredible means unavailable task as he accept the wager, which is almost impossible. आपको तो मालूम है he is a practical person. He seems to be calm and patient. आपने देखे होंगे अरेस्ट करने के बाद भी he was calm, सेविल रो पे जाने के बाद भी he was calm. क्योंकि ग्रेट लोग always keep calm to tackle the problem or stress. Okay? Yes. Next, he respects the influence of time and believes in giving time to solve the crisis of time. समय को समय देना पड़ता है अच्छा समय आने के लिए. ऐसे समझदार लोगों का ये है और फिलियस फॉग बिलोंग टू दैट कैटेगरी. He has great patience while tackling challenges to or problem. He never take decision excitement. कौन सा डिसीजन वो एक्साइटमेंट नहीं लेते थे. कैरेक्टर स्केच. He has tremendous self control and self dignity. He seems to be unselfish and generous. वो निस्वार्थी है और जनरस भी है. He gives priority to humanity. मानवता को प्रायोरिटी देते हैं. कैरेक्टर स्केच. अफेक्शन एंड लव. ही इज नॉट ग्रीडी फॉर मनी. उनको पैसे का बिल्कुल लोभ नहीं है. ही स्टबॉर्न, जिद्दी है, एंड डिटरमाइंड, निश्चयी है टू फुलफिल द चैलेंज. ऐसा आपको कैरेक्टर स्केच लिखना पड़ेगा फिलियस फॉग का. लेकिन अगेन आई रिपीट, समरी देखने के बाद ही सब बातें. ओके. नेक्स्ट वन, लास्ट. पेसर पार्टआउट कैरेक्टर. ही इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल. कैरेक्टर्स. आफ्टर फॉग दिस कैरेक्टर शाइन्स विद हिज स्किल and certain quality. पेसर पार्ट भी कम नहीं थे. I should say साइड हीरो था वो. Yes. He is very loyal, means faithful और ईमानदार to his master.
ही डेडिकेट हिज लॉयल्टी वेरी नीड, जहां पे जरूरत है वहां पे वो अपनी ईमानदारी का झलक दिखा रहा था। कौन? पेसर पार्ट आउट। ही हैज लविंग नेचर, उसका स्वभाव अच्छा था। केयर फॉर एवरीवन, ही टेक्स केयर ऑफ हिज मास्टर और इन हिज क्राइसिस एंड मेंटेन हिज कामनेस, और अपनी वो मालिक की बहुत अच्छी केयर करता था। कौन? पेसर पार्ट आउट। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप सभी कॉलेज लिखना पड़ेगा। ओके, यस। ही इज वेरी प्रॉम्प्ट एज ही रन्स टू होम अनाउंसिंग द मिस्टेक अबाउट द, उसने गलती की थी, आपको मालूम है, वो फिक्स की गलती। यस, तो वो गलती भी एक्सेप्ट करता था। ही इज वेरी अनसेल्फिश एज ही डजंट एक्सपेक्ट एडिशनल चार्जेस फ्रॉम हिज मास्टर, वो निस्वार्थी भी है, एक्स्ट्रा काम करने के लिए पैसे भी नहीं लेता था वो। ही वॉज वेरी गुड पर्सन। ही इज इमोशनल एज ही क्राइज फॉर हिज मिस्टेक, और उसने गलती की थी उसके लिए वो इमोशनल भी है और कभी कभी रोया भी है। सो ऐसा उसका कैरेक्टर है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर ऑल दिस क्वेश्चन, आप देखो एक ध्यान में रखो, कंटेंट वही है, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा घूम फिर के आ सकता है, इसलिए आपको दो बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो वीडियो देखो पहले समरी वाला, और बाद में क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करो, सो दैट I told you question will come from that content only. Only wording may be changed or wording may be changed. Okay? So I hope you may have liked this video. और इनमें से एक दो क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। I should not say सब, एक्चुअली आना तो सब चाहिए, बट मेरे लिए अच्छा नहीं कि I should not say that all will come. बट इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कंटेंट तो यही रहेगा। I am damn sure about that. Okay? सिर्फ वर्डिंग में भी चेंज, बट कंटेंट विल बी सेम। वीडियो कैसा लगा आप जरूर लिखेंगे। मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, लिखने के लिए कंजूसी बिल्कुल नहीं करना कि कैसा वीडियो लगा, जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, बिकॉज नो वन इज 100% परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। आई ट्राई माई बेस्ट, आई होप योर कमेंट्स विल हेल्प मी अ लॉट। लेकिन फ्यूचर फर्दर वीडियो के लिए आपको इस चैनल पे रहना है, एंड इसलिए अगर आपको इंग्लिश परफेक्ट करने का है तो हमारा और एक चैनल है इंग्लिश विद पीके 99, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। दे आर जस्ट, दिस चैनल इज ओनली फॉर इंग्लिश विद पीके 99 is only for improvement of English, and the English Garden is for education। और एक चैनल है मराठी एंड इंग्लिश में फॉर मराठी स्टूडेंट्स, इंग्लिश फॉर करियर। सो ये तीनों भी चैनल यू कैन अवेल और यू कैन यूटिलाइज इट। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मीनवाइल आई टेक योर काइंडली, ग्रेट टाइम।